فیصلہ سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں خطا کا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث دیکھیں، اس میں 23 رکعت کی حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو اور گیا؟ جو 8 رکعت کی ہے ہاں ضعیف ہے تو کیا ہو گیا؟ اور جو 8 رکعت 3 وطر پڑھنے کی، اس پہ سب اس کا اسٹیٹس سب صحیح ہے۔ کس نے کہا صحیح ہے؟ ابھی تو عمر بھائی نے ثابت کی کہ راوی کا وہم ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اور کہتے ہو صحیح ہے۔ اور جو آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے، وہ ادھر یہاں ضعیف ہے۔ ارے بھائی حوالہ دیا، دلیل دیا، آپ کیا سنتے ہو؟ ارے بھائی اس کے بارے میں بات نہیں رہے، یہ صاف کر کے جا رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، وہ واپس بولتے ہیں کہ وہ ساری باتیں ہم کو ہمارے سامنے کرو۔ بھائی آپ جو 8 رکعت والی حدیث پڑھ رہے ہیں وہ تراویح کے لیے ہے، اس پہ ہم نے دلیل مانگی ہے، تو یہ بھائی صاحب محمد بھائی بولتے ہیں میں لا کے دوں گا کل، آپ کے پاس ہے کیا یہ 8 رکعت والی جو ہے وہ تراویح کے بارے میں موطا امام مالک اب کی؟ جو 20 رکعت جو پڑھنے کی ہے، وہ تراویح کے بارے میں ہے کیا؟ ہم نے آلریڈی دے دیا کہ اجماع ہمارے پاس دلیل ہے، ریپیٹ کروا رہے ہو آپ صرف۔ سعید بھائی اصل بات ہے نا، وہ اسلام 360 ایپ ہے، اگر اس میں صحیح لکھے گا تو سمجھ جائیں گے اسلام صحیح ہے۔ 360 اگر اس لکھنے میں والا ایپ کے آگے صحیح اور ضعیف لکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے۔ 360 اسلام 360 نہیں ہے، اس نمبر سے پھر کتابوں میں بھی جا کے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو کون بھی بول دیا جا کے چلے دیکھ کے آگے سوال ادھر کا بول دیا، اس جواب طریقے سے دیں، نہیں ہے۔ محمد بھائی تو کل دیں گے، آپ آج جواب دیں کہ آپ نے جو 8 رکعت والی پڑھی یہ تراویح کی نماز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی وہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں نا، آپ کے ہم پاس نے 20 جواب رکعت دے کی دیا کہ تراویح کی اجماع نماز کی دلیل ہم کو بھی دے تھوڑا آپ دو دیا، نا۔ ہم نے اجماع دلیل ہے، دے دیا ہم نے حوالہ۔ آپ بتائیں 8 رکعت والی پہ کیا دلیل ہے کہ تراویح ہے؟ اور اجماع حجت بھی ہے۔ اجماع کو حجت قرآن اور حدیث نے کہا ہے۔ چلیں ابھی بتائیں 8 رکعت تراویح کی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی ہمارے پاس دلیل کیا ہے، دلیل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نام دلیل الگ ہے الگ نہیں تو بات ختم کرو، وہ سب مت سناؤ، وہ اس سب کو مت ہم سناؤ، تراویح دلیل کہتے ہیں، سناؤ۔ اور غیر رمضان میں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس کی دلیل دو۔ عمران بھائی یہاں سنا ہے ان کی بات کہ وہ ہے تو ان کے حساب سے کوئی تو بھی ایک بات کو ہے نا اجماع آگا تو کون بھی ایک محدثین ایک بات کو اجماع کر کو اناؤنس کر دے تو وہ اجماع پورا ہوگا امت کا۔ ایک محدث نہیں، ہم نے بہت سارے حوالے پڑھے، غلط بات بول رہے ہو ہماری طرف۔ سعودی کا حوالہ پڑھا گیا، امام نبی کا حوالہ پڑھا گیا، غلط بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں، غلط الزام مت لگاؤ ہم پہ۔ جو ہم بول رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تم بھی جو بول رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، غلط الزام مت لگاؤ۔ ہم نے حوالہ دیا سعودی کی کتاب کا، ہم نے حوالہ دیا امام نووی محدث کا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حدیث کو محدث سے سمجھتے ہیں، تو ہم تو محدثین سے دکھا رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ حوالہ محدثین سے دے کہ یہ جو انہوں نے 8 رکعت پڑھی ہے اس پر اجماع ہے۔ 2-3 حوالے پڑھو، یہ تراویح تیاری کر کے آؤ، کل تیاری کر کے آؤ۔ خالی باتیں ریپیٹ کرنے لگا رہے ہیں یار، ایک ہی بات کو 10 بار بولنے لگا رہے ہیں۔ بھائی کل آؤ، جاؤ کل آؤ، تیاری کر کے اچھے سے آؤ، یا کل بڑے بھی عالم کو نہیں، لے کے آؤ۔ میرے خیال سے اگلے سال آؤ تو اچھا ہے، سال بھر تیاری کرو، کیونکہ بچوں کی طرح ایک ہی بات ریپیٹ کرنے لگا رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے ٹاپک ختم کیا تھا یہ بول کے کہ تابعی، دیکھو صحابی سے کیا ثابت ہے بتائے گا کون؟ میں تم کہ تابعی؟ سمجھنا ہے نا عمران بھائی؟ عمران بھائی چلے گئے آتے جی بولو، نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ ہاں، صحابی سے کتنی رکعت ثابت ہے؟ سب سے پہلا یہ بات کس کو معلوم پڑے گی؟ کس کو؟ تم بتاؤ کس کو معلوم پڑے گی سب سے پہلا یہ بات؟ جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا اس کو نا، ہاں ہے نا؟ تم کو اور میرے کو نہیں نا، سب سے پہلا ہوا ان لوگوں کو پتا چلے گا جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، 200 صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا نام ہے عطا بن ابی رباح۔ کیا نام ہے؟ بخاری۔ عطا بن ابی رباح۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے رمضان میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7762، صحیح حدیث۔ جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں
वो तो फरमाते हैं 20 रकात। तो फैसला यहाँ पर होगा ना भाई, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में बहस का क्या जरूरत। जो सहाबी को नमाज पढ़ते हुए देख लिए वो बता रहे 20। अभी शेबा की जो अभी आप हदीस बता रहे हैं ना, वो तो उसका स्टेटस तो मतलब सॉरी स्टेटस नहीं, मतलब उसको तो ज़ईफ कहते हैं। अरे कौन ज़ईफ कहता है? का हवाला कौन पेश ज़ईफ करो, कहता है? कौन कहता है ज़ईफ? हद्दसना इब्ने नुमैर अन अब्दुल मलिकी अन अताइन, दो तो रावी है, ये ज़ईफ कैसे होगी? ठीक है भाई, हमारे जैसे कि मोहम्मद भाई ने बोला है कि कल बात करेंगे बोल के, कल ही बात करेंगे अभी भाई। तुम बात कंप्लीट करो, मोहम्मद भाई तो कल बात करेंगे, तुम कंप्लीट करो कि सहाबी को जो नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, 200 सहाबी को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, वो तो फरमाते हैं तरावी 20 रकात है, और इसके अंदर ज़ईफ की तो कहानी है ही नहीं। वजह उसकी ये है कि इमाम इब्ने अबी शैबा 2 वास्ते से तो पहुंच गए ताबई को, इब्ने नुमैर और अब्दुल मलिक, ये तो सही हदीस है। स्टेटस में सही ज़ईफ करके लगा दिए ना इनको। कौन यहाँ से डाउट मार स्टेटस रहा में है बस। ज़ईफ है? कौन से स्टेटस में ज़ईफ है बताओ? अभी 7762 आप जो 360 आपका चुप जो बैठो ना, कौन हदीस तुम्हें लगाए थे क्या ना, 360 आप 360 नहीं आप नहीं घड़ी नहीं घड़ी नहीं, बोल के ताने लगा लेना। रुक जाओ, वो भेजो, अब भी स्क्रीनशॉट लेकर के भेजो। वो ज़ईफ कैसे है भाई? हर एक बार शेयर कर डाले इमरान। ये शेयर करो। नहीं बा, वो अभी शेबा की हदीस नहीं है मेरे पास फिलहाल। अब नहीं, स्टेटस को ज़ईफ बोल रहे हैं, ये भी गलत बात है भाई। सुना हुआ है, आपकी तरह हम तैयार होके नहीं बैठे इधर। जब सुनी हुई बातें कंफर्म हो तो ही आगे बढ़ाते हैं, कुरान में आता है। हाँ वही तहकीक तो कर बोल लिया रहे ना। करो। अब मैंने तो फिर सुना अंदाजे है पे इस ज़ईफ क्यों तरीके बोल से। रहे हो? अंदाजे पे हाँ, ज़ईफ में नहीं बोलो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, और ये कल सुना बात भी करेंगे नहीं बोल के। है, ये आपने नहीं सुना, ये भी गलत बात है। नहीं सुना इस हदीस के बारे में कि ज़ईफ है, सवाल ही नहीं उठता। माशाअल्लाह, अब लोगों के दिल भी पढ़ लेते हो। नहीं, हमारी तहकीक उतनी जबरदस्त है। हदीस नंबर याद रखो 7762। ये कौन सुना रहा है, ये ज़ईफ है, वो लाके बताना। किससे सुना आपने? कहां से सुना? इमरान भाई किससे सुना? किससे सुना? जल्दी बोलो नाम। किसी मुहद्दिस की तहकीक लेके आना हदीस के ताल्लुक से। नहीं, ऐसे मैं इधर-उधर की तो बातें नहीं। ये कहता हूं कि किसी भी नहीं कहा। मुझे पता है ना, किसी ने इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहा। ये अंदाजे पे इन्होंने बोल दिया है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं कहां से सुना, कहां से सुना इमरान भाई? कहीं से आ गई थी ना उनके हवाई बात उनको जवाब समझ में देने आ दो गई। ना कि कहां से सुना। एक आदमी को इतना तो याद रहता है मैंने फला जगह से सुना, हदीस नंबर, बुक का नाम, ये सब छोड़ दो, ये तो याद रहता है मैं यहाँ से सुना था। काली खामा का अंदाजे पे बोल देने का ज़ईफ है। क्या ज़ईफ है उमर भाई? इसमें रावी 2 है। इब्ने नुमैर, जहां तक याद है बुखारी का रावी है, और अब्दुल मलिक 2 तो रावी है। उसके बाद डायरेक्ट अन अताइन है, मतलब अता इब्ने रबा ताबई। इब्ने अबी शैबा वाली वो हदीस बोल रहे हो? इब्ने अबी शैबा ही बोल रहा ना चले मैं। गए शायद। नहीं, वो जो अभी मैंने पढ़ी है वो नहीं, वो उसके बारे में। अभी स्क्रीन पे लगाया था ना, वो हदीस के नीचे स्टेटस ज़ईफ करके लिख के है, उस पे बात कर रहा है वो। भाई साहब, मैंने अभी जो हदीस पढ़ी है वो ताबईन से पढ़ी है, और पूरी पढ़ने के बाद उसने ये बात बोला कि हदीस ज़ईफ है। अब्दुल रहमान भाई तब से हाथ उठा रहे, क्या ही पूछो, बोलो। अरे क्या बोलो, ये लोग सिर्फ बात करवा रहे हैं यार, दलील हम दे रहे हैं इतनी सारी, मान नहीं रहे हैं, सिर्फ बात करो। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम। 2-3 सवाल थे वो तकलीफ के बारे में। मतलब एक बंदा है हमारे यहाँ, हाँ, तो उसने सवाल करा था, क्या तो सवाल मैंने किया उसको था? पहले क्लियर कर दिया था कि तकलीफ किन मसाइल में होती है। हाँ, तो उसने ये बात मान भी लिया। फिर उसने ये भी मान लिया था कि सहाबा में भी इख्तिलाफ हुआ और उसको उस पर कोई मसला नहीं था। फिर जो वो बुखारी की हदीस है मुज्तहिद का इज्तिहाद सही होगा तो 1 अजर और गलत होगा तो 2 अजर, उसने ये भी बात मान ली। सही होगा तो फिर 2 वो अजर। आता है कि सही होगा तो 2 अजर, गलत होगा तो 1 अजर। फिर इंजीनियर को सुनता वो, फिर वो आगे जाके वही डायलॉग के अंधी तकलीफ मत करो। फिर उसने क्या सवाल करा, चलो माने कि इमाम से इज्तिहाद गलत हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे रफ़े दन का मसला है अहनाफ और शवाफी के दरमियान,
तुम बोलते कि तुम्हारे पास दलाइल है, वो रफेदन कर रहा था, तो उससे बात कर रहा था एक बंदे ने, आलिम है वो, उन्होंने बात करे थे, तो उसने वो क्या बोलने लगा कि तुम बोलते कि तुम्हारे पास दलाइल है, तुम मनसूख मानते हो, तुम तर्क के तुम्हारे पास बहुत सारे दलाइल है, यानी तुम्हारा मजहब इस मामले में सही हक पर है और इमाम शाफी गलत है। इमाम शाफी से इज्तिहाद गलत हुआ, उनको 2 अजर मिले, लेकिन अब उनके मुकल्लिदीन को चाहिए कि वो सही हदीस की तरफ रुजू करे और अपने इमाम का कौल छोड़ दे और रफेदन करना छोड़ दे। और अगर इमाम का इज्तिहाद गलत हुआ तो उसके मुकल्लिदीन को 2 अजर नहीं मिलेंगे, वो तो इमाम के लिए, लेकिन मुकल्लिदीन को जब मालूम पड़ गया कि इज्तिहाद गलत है तो फिर वो गलत के पीछे क्यों चल रहे। उसको यहाँ लाएंगे कि सेम सवाल के लिए, अभी बहुत मजा आएगी। वो आ रहा ही नहीं बंदा, उससे पहले भी मीट चल रही थी, मैं उसको बोला आना मीट पर, तो बोले मैं सुबह 5 बजे उठता, बोले मेरे को जाने का रहता, बोले इस वजह से, बोले मैं तो कोई बात नहीं, जल्दी ला लो, दिन में बात करा लो कॉन्फ्रेंस में, तो ये सवाल का जवाब देने मजा आएगी। हाँ, वो आपका नंबर मीरान भाई से लिया था, इंशाल्लाह कॉल पर लूंगा कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फिलहाल आप इसका जवाब सुन लो। कौन सा मुकल्लिद कहता है मेरा इमाम खता पर है भाई? कौन बोल रहा है? इमाम शाफी रफेदन कर रहे हैं तो उनके मुकल्लिदीन बोलते हैं हमारा इमाम हक पर है। कब कहा कि खता पर है? इमाम अबू हनीफा तर्के रफेदन के कायल है तो हम लोग कहते हैं कि वो हक पर है। वो भी अपने इमाम को हक पर बोल रहे हैं, हम भी अपने इमाम को हक पर बोल रहे हैं। किसने कहा खता हो गई और 1 अजर मिलेगा और छोड़ दो और ये कर दो वो कर दो? वो तो अपनी ख्याल सुना रहा है, वो तो जो उसके अंदर दिमाग में बना ख्याली पुलाव वो सुना है। इमाम शाफी के मुकल्लिदीन के नजदीक वो हक पर है रफेदन करने वाली हदीस पे अमल करके, और हनफियों के नजदीक उनके इमाम हक पर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तर्क रफेदन की हदीस पे अमल करने की वजह से। तो दोनों तो हक पर है, खता पर तो दोनों में से कोई नहीं है। क्लीन बोल्ड। और वो एक मतलब बंदे को ये भी क्लियर कराए थे तकलीद के मामले में कि तकलीद किन मसाइल में करते हैं, तो उसने बोला इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो मुद्दत रज़ात है, दूध पिलाने की मुद्दत, तो बोले 2.5 साल है, और कुरान के अंदर 2 साल का जिक्र है। इमाम साहब के नजदीक भी 2 ही साल है। वो हिदाया वगैरह की इबारत की शायद से उसके अंदर इसकी ज़ेवर में लिखा है 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना हराम है। मुफ्ता भी ही मसले पर अमल किया जाता है। अबू दाऊद की मैं एक हदीस पढ़ के सुनाऊंगा ज़ईफ, और बोलूंगा इस पे अमल करो, करेगा वो? करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हदीस है ना, कर। इमाम अबू दाऊद ने हदीस लाया, करना पड़ेगा। ऐसा बोलू चलेगा? नहीं। तो इससे पता चला जैसे हदीस की किताबों में सही और ज़ईफ होता है अमल के लिए, वैसे ही फिका की किताबों में मुफ्ता भी और गैर मुफ्ता भी होता है अमल करने। अबू दाऊद की ज़ईफ हदीस पे अमल नहीं होगा, सही पे होगा। वैसे ही फिका के कॉल में मुफ्ता भी पे अमल होगा, गैर मुफ्ता भी पे अमल नहीं होगा। दोनों का कायदा सेम है। तो ज़ईफ हदीस पेश करके कोई शोर मचाएगा कि तू इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा, ये वैसा ही है कि जो जिस कॉल पे फत गैर मुफ्ता भी कॉल है उसको उठा के शोर मचाना कि इधर यूं लिखा है। तो अबू दाऊद की सारी ज़ईफ हदीस, नसाई की सारी ज़ईफ हदीस, तिरमिज़ी की सारी ज़ईफ हदीस पढ़ के कोई शोर मचा और कहे कि इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा, जबकि इन मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को अपनी किताब में लाया है, लिहाजा करना पड़ेगा, वरना वो लोग गलत है। ये वैसी हरकत है कि गैर मुफ्ता भी कॉल ला के उछालना और कहना कि भाई ये तो यहाँ तो ये बात है। बंदाए आशी हूँ।